Welcome back. In this particular video, I am going to discuss all the basic MySQL commands which can be very useful for all the students learning computer science or information practice of grade 11 and 12. This is part number 1 for this particular topic where I am going to talk about DDL commands, and I am sure that after watching this video, it is going to be very easy to understand and remember for sure. Namaste student, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel techtipnow. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are visiting for the first time या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. And also if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. So let's talk about MySQL commands, I mean DDL commands. सबसे पहले बात आती है, जब भी हम MySQL commands के बारे में बात करते हैं, हमें पता होगा कि हम MySQL commands को बेसिकली 3 सेक्शंस में क्लासीफाई कर सकते हैं. As you can see in your screen, first is your DDL, second is your DML, and third is what your TCL. Now first of all, DDL is something which is, you can say, data definition language. DML is basically data manipulation language. And third TCL is what your transaction control language. यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि एक्चुअली जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ MySQL कमांड्स की बात करते हैं तो बेसिकली देयर आर 4 कैटेगरीज. जो फोर्थ कैटेगरी होती है दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर DCL, एंड द फुल फॉर्म ऑफ DCL इज बेसिकली व्हाट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. बट अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट DCL, बट I think it's my moral responsibility that I should tell about all the classes of MySQL commands. So you just try to keep this DCL in your mind that it is basically what data control language. Now what are the commands basically we use under this DCL is what your grant and revoke. Now these are basically used for user rights and data access permissions. So let's come back to the point. I was talking about this DDL actually. Now data definition language का मतलब होता है defining your data. Now defining your data का मतलब होता है defining the structure of either your database or you can say what your table, right? देखिए हमारे MySQL की पूरी कहानी तो डेटाबेस के अराउंड ही होती है, और जब आप डेटाबेस के बारे में या उसके डेफिनेशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली या तो आप डेटाबेस डिफाइन करते हैं या टेबल को उसके अंदर डिफाइन करते हैं. तो इन दोनों से रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है, और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर्स. एंड नॉट ओनली द डिफाइनिंग, यहाँ पर आप चाहें तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं या स्ट्रक्चर को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज एक्चुअली अबाउट द DDL कमांड. And when we talk about data manipulation language, तो इसका मतलब once you created the structure of your database or you can say the table, after that when we talk about this data manipulation language, जहां पर हम basically बात करते हैं manipulating records. Now जब हम बात करते हैं manipulating records की तो basically हम यहाँ पे या तो insert record की बात करते हैं या update record की बात करते हैं. I mean अपडेट का मतलब मैं बात कर रहा हूं मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की भी बात कर सकते हैं. एंड सिमिलरली जब हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज की बात करते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, आप किस तरह का कंट्रोल उसके ऊपर चाहते हैं. लाइक आप अपने ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या ड्यू टू एनी रीजन आप अपने ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे 2 कमांड हम लोग यूज करते हैं. वन इज कॉल्ड योर कमिट, जिसका मतलब होता है आप अपने जो भी ट्रांजैक्शन है उसको पूरा एग्जीक्यूट कीजिए, और दूसरा एक कमांड जो हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट रोल बैक, जिसका मतलब होता है ड्यू टू एनी रीजन आप अपने ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दीजिए. सो अकॉर्डिंग टू गिवन सिलेबस आई एम going to discuss about DDL and DML commands in detail. बट जब आप एडवांस लेवल पे बात करते हैं तब हम TCL और DCL के बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले अब हम बात करना शुरू करते हैं DDL कमांड्स की, या उससे भी पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं जो हम बेसिकली इन डिफरेंट क्लासेस में यूज करते हैं या इन कैटेगरीज में यूज करते हैं. Now, so in DDL commands, generally we talk about the create command, then drop command, then alter command, then truncate command.
ये बेसिक 4 कमांड है जिसके बारे में हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कमेंट और रीनेम भी होते हैं जिनको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। नाउ DML की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली सेलेक्ट एंड डिलीट कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जब हम TCL की बात करते हैं तो फॉर योर नॉलेज कमिट एंड रोल बैक कमांड को हम इस TCL कैटेगरी में रखते हैं। सो आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे DDL कमांड्स की, जहां पर हम देखेंगे क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट स्टेटमेंट, और यू कैन से द क्रिएट कमांड फर्स्ट ऑफ ऑल. So first of all, what is this create command and how can we use this create in our MySQL? So we all know that create is basically used for defining the structure of a database, or you can say what table. So सबसे पहले बात आती है कि यदि एज ए डेटाबेस मैं बात करूं, अगर आप किसी डेटाबेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमारा सिंटैक्स होता है हमारे क्रिएट कमांड का, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कमांड्स हैं मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड एक बार जब हम इसे एक्सप्लेन करके समझ लेंगे उसके बाद मैं इसे MySQL सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट करके आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करूंगा किस तरह से हम इन सारे कमांड्स को यूज करते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था सिंटैक्स की। तो जब भी आपको क्रिएट कमांड यूज करना है, ऑब्वियसली वी स्टार्ट लाइक क्रिएट, देन ऑब्वियसली जब हम डेटाबेस क्रिएट करने की बात करते हैं तो वी शुड राइट क्रिएट डेटाबेस, एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव एनी नेम टू योर डेटाबेस. So here I am taking it to database name, and obviously then we end it with this semicolon. So this is how we can define or create a database. For example, क्रिएट डेटाबेस स्ट्रॉन्गहोल्ड, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा मेरा स्ट्रॉन्गहोल्ड नाम से डेटाबेस मेरे MySQL में रेडी हो जाएगा। एंड जब हम बात करते हैं किसी टेबल को डिफाइन करने की, जो ऑब्वियसली किसी डेटाबेस के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं, तो उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है दैट यू ऑल नो दैट वी ऑलवेज स्टार्ट इट विथ क्रिएट, देन वी टेक दिस टेबल एंड देन वी स्टार्ट और ओपन दिस स्मॉल ब्रैकेट, एंड इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हमें अपने टेबल में चाहिए इंक्लूडिंग देयर डेटा टाइप्स, और अगर कांस्टेंट की जरूरत है तो वो सारी चीजें हम एक एक करके लेते हैं और उन सारे फील्ड्स को या कॉलम्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. सो आई एम राइटिंग द सिंटैक्स नाउ. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया, दैट इज कि जब क्रिएट टेबल आप लेते हैं तो ऑब्वियसली हम एक टेबल का नाम भी देते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी कॉलम को डिफाइन करते हैं सो उसके साथ डेटा टाइप तो कंपलसरी होता है, बट ये जो कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ लाइक नॉट नल, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, दे आर ऑप्शनल. वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से या डिमांड के हिसाब से सेट करते हैं अपने टेबल में, बट दिस कॉलम नेम एंड डेटा टाइप बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर. सो ये हमें लेना बहुत जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे एक आइटम टेबल रेडी किया है जिसमें मैंने 3 फील्ड्स लिए हैं, आइटम नंबर, नेम और रेट. उनके डेटा टाइप्स मैंने लिए हैं, साथ में अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने इसमें प्राइमरी की डाला है और इसमें रेट में मैंने नॉट नल कांस्टेंट को डाल दिया है, जबकि आइटम नेम में मैंने कोई भी कांस्टेंट को नहीं लिया है. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज और अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्रिएट स्टेटमेंट, सॉरी क्रिएट कमांड, एंड हाउ कैन वी यूज इट विथ defining, creating database, or you can say creating table. So let's move to the next command now. Now the next command is talking about the drop. Now जैसा इसका नाम है आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि drop is all about deleting the structure of either a database or you can say a table. So इसका मतलब ये है यदि आप डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो उसका जो सिंटैक्स होगा डेफिनेटली वो होगा ड्रॉप डेटाबेस, देन ऑब्वियसली द नेम ऑफ डेटाबेस. यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप ड्रॉप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो उस डेटाबेस का पूरा स्कीमा प्लस उसका जो रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी टेबल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां से डिलीट हो जाती हैं. सो ये आप जरूर ध्यान में रखें. नाउ जब टेबल हम डिलीट करने की बात करते हैं सो वी कैन सिंपली राइट ड्रॉप टेबल, then obviously the name of my table. So this is how we can delete a table.
और जब मैं डिलीट टेबल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब इसमें स्ट्रक्चर प्लस इसका डेटा दोनों ही यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाता है. सो द एग्जाम्पल इफ आई टॉक, सो वी कैन सिंपली से, so this is how we can write statements for dropping a database, or you can say the dropping table. It should be table actually. So ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर से इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस DDL, दैट इज योर अल्टर कमांड. नाउ जिस तरह से हम किसी डेटाबेस या टेबल को क्रिएट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ऑब्वियसली उस तरह से हम एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो जब हम अल्टर की बात करते हैं तो अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना. मॉडिफाई क्या करना? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना. और मॉडिफाई स्ट्रक्चर किसका करना? तो ऑब्वियसली टेबल का स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना. नाउ यहां पर अल्टर को समझने के लिए कुछ एक ट्रिक अगर हम अप्लाई करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हम सारे ही वर्क इसके समझ सकते हैं. देखिए, टेबल जो होता है उसमें बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं. एक तो उसमें कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं और दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं कॉलम्स को. सो इसका मतलब अल्टर हम दो तरीके से करते हैं, कॉन्स्टेंट के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से. हम जब बात करते हैं मॉडिफाई करने की, तो मॉडिफाई में मेनली हम बात करते हैं या तो कुछ नया कॉलम या कॉन्स्टेंट को ऐड करने का, या मॉडिफाई करने का, या स्ट्रक्चर के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के, मतलब किसी टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर किसी कॉलम को या कांस्टेंट को डिलीट करने का. इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं ड्रॉप की. तो अल्टर के अंदर जाके आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तीनों अप्लाई किस में होते हैं? हमारे कांस्टेंट एंड कॉलम्स में. इसको मैं कुछ इस तरह से आपको कैटेगराइज करके दिखाता हूं कि जब हम बात करते हैं ऐड करने की, किसके साथ? अल्टर के साथ. तो या तो आप नए कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर सकते हो. अब कॉन्स्टेंट कौन कौन से हम ऐड कर सकते हैं आप उसको भी नोट कर लीजिए. या तो वो होगा आपका प्राइमरी की. दूसरा कॉन्स्टेंट आप ऐड कर सकते हो दैट इज योर फॉरेन की. तीसरा जो कॉन्स्टेंट आप ऐड कर सकते हो दैट इज योर यूनिक की. एंड फोर्थ जो आप ऐड कर सकते हो कॉन्स्टेंट दैट इज योर चेक कॉन्स्टेंट. सो ये बेसिकली चार कॉन्स्टेंट को आप अल्टर के साथ ऐड कर सकते हो. इसके साथ ही साथ हम किसी कॉलम को या फील्ड को या एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सकते हैं. आप अपनी जरूरत के हिसाब से, आइडियली आई शुड स्पीक एट्रीब्यूट, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग दैट कॉलम और फील्ड. So whenever I am saying that column or field, it is pretty understood that I am talking about the attributes. So column को भी आप ऐड कर सकते हैं. Like आपका कोई टेबल है उसमें सिर्फ दो ही फील्ड्स हैं या दो ही कॉलम हैं, तो तीसरा आप ऐड कर सकते हैं. So remember this, you're adding with alter. Now जब हम बात करते हैं मॉडिफाई करने की, so मॉडिफाई कभी भी कांस्टेंट को नहीं किया जाता है. हम मॉडिफाई सिर्फ करते हैं किसको? हमारे कॉलम को. अब कॉलम में मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? इसमें या तो आप नॉट नल कांस्टेंट को ऐड कर सकते हो, या डिफॉल्ट को आप ऐड कर सकते हो, या तीसरा मैं यहां पे बात करूंगा आपसे दैट इज योर डेटा टाइप. तो मॉडिफिकेशन तो हम कॉलम की करेंगे. कॉलम में जैसे कोई varchar का डेटा टाइप किसी कॉलम में दिया है, उसका साइज 20 है, आप उसको 40 करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. किसी कॉलम में डिफॉल्ट नहीं है तो डिफॉल्ट लगा सकते हैं, नॉट नल नहीं है तो नॉट नल लगा सकते हैं, या नॉट नल हटाना भी है तो इसे यूज करेंगे. तो ये कॉलम में मॉडिफाई का मतलब या तो आप इसे ऐड कर सकते हो या इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, राइट. तो ये दोनों चीजें हम मॉडिफाई की हेल्प से करते हैं किसमें? अल्टर में. और इसके साथ फाइनली एक और काम हम कर सकते हैं, वो होता है हमारा ड्रॉप करना. तो अल्टर के साथ जो ड्रॉप होता है, ऑब्वियसली उसमें या तो आप कांस्टेंट को ड्रॉप करोगे. अब कौन से कांस्टेंट ड्रॉप करोगे? जो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, या तो प्राइमरी की, या फॉरेन की, या यूनिक की, या फिर हमारा चेक कांस्टेंट. एंड साथ ही साथ किसी कॉलम को भी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो. लेकिन अगर आप टेबल को ड्रॉप करने की बात करेंगे तो फॉर दैट सिंपली वी यूज ड्रॉप टेबल कमांड. उसको आप इस अल्टर के ड्रॉप के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. तो आई होप ये पूरे अल्टर की फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गई होगी इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की हेल्प से. तो अब मुझे लगता है
कि मैं इन सारे जो वर्क जो मैंने आपको बताए हैं इनका सिंटैक्स भी आपको एक एक करके बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले ये एडिंग की बात करते हैं। ये कांस्टेंट ऐड करने का सिंटैक्स क्या होगा यूजिंग दिस ऑल्टर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राइमरी की को ऐड करना यूजिंग दिस ऑल्टर कमांड। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नाम जिस टेबल में आपको मॉडिफिकेशन करना है, एंड उसके बाद में हम यूज करते हैं कीवर्ड ऐड, एंड देन वी राइट प्राइमरी की स्पेस, एंड देन ब्रैकेट में आप जो भी फील्ड जिस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस सेमीकोलन। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास कोई एक आइटम टेबल है, उस आइटम टेबल में आइटम नंबर को मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा। दिस इज माई आइटम, प्लीज ये करेक्शन को आप इग्नोर करिएगा, एंड इसके बाद में मैं लिखता हूं ऐड, एंड द फील्ड नेम इज से माई आइटम नंबर, एंड इसके बाद में जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आइटम का आइटम नंबर प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं, सेकंड इज योर फॉरेन की, तो उसके लिए जो बेसिक सिंटैक्स हम यूज करते हैं दैट इज योर ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम, एंड उसके बाद में हम लिखते हैं ऐड, ऑब्वियसली माई फॉरेन की। नाउ मैं जिस टेबल में अपने जिस फील्ड को फॉरेन की बनाना चाहता हूं उस फील्ड का मैं नाम लेता हूं यहां पे, एंड देन मुझे ये भी बताना होगा कि ये जो फील्ड नेम है जिसे मैं फॉरेन की बना रहा हूं इसका रेफरेंस कौन से टेबल की कौन से फील्ड से आ रहा है। फॉर दैट वी राइट व्हाट रेफरेंसेस, एंड देन वी टेक द नेम ऑफ टेबल, एंड इनसाइड इट्स ब्रैकेट द नेम ऑफ फील्ड जिसके रेफरेंस में मैं इसे फॉरेन की रेडी कर रहा हूं, and then obviously this semicolon. So this is how we can use we can add foreign key using this alter table command. एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर से आपको देता हूं सीधे MySQL पे चल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिक की, कांस्टेंट की। तो मैं यहीं पे यूनिक की के बारे में बता देता हूं। वी ऑल नो दैट यूनिक की जो होता है बेसिकली वो तकरीबन सेम होता है प्राइमरी की के, बट डिफरेंस ये होता है कि यूनिक की में वैल्यूज नल हो सकती हैं। सो अगर इसे आप अल्टर टेबल के थ्रू ऐड करना चाहते हैं तो उसका जो बेसिक सिंटैक्स होगा, सो नाउ यू कैन सी हाउ कैन वी ऐड यूनिक की, अल्टर टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल, देन वी सिंपली राइट ऐड यूनिक, देन द फील्ड नेम, एंड द फोर्थ वन विच इज माई चेक कांस्टेंट, सो उसे भी हम देख लेते हैं। सो इसके लिए जो सिंटैक्स होगा, सो यू कैन सी दिस इज हाउ वी कैन ऐड चेक कांस्टेंट। यहां पे आप देखिए मैंने ऐड चेक लिखे है, उसके साथ में फील्ड नेम प्लस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब जैसे कि सपोज मेरा एक फील्ड है आइटम टेबल में, उसका नाम है रेट, और रेट जो होना चाहिए वो हमेशा 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे आप लिखोगे उसको रेट शुड बी ग्रेटर देन 20, रेस्ट वुड बी अल्टर टेबल आइटम ऐड चेक रेट इज ग्रेटर देन 20। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार क्लियर करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। So overall this is how we can use alter command to add various constants. Now the thing is that how can we add a new column using this alter, तो वो भी हम देखते हैं। So now if you want to add a column, then the syntax is obviously we start with alter table, then table name, and then we take this add, then the name of column, obviously its data type, and if constant is there that you can also take like not null, default, etc. Otherwise you can simply end with this semicolon. Say for example here I am taking a table item where I want to add a field, say date of purchase, which should be date, and I want to keep it not null always, so I am taking it or writing in this way. So this is how we can add a new column using this alter command. तो ये तो सारी बातें हो गई कि किस तरह से हम कॉलम या कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि अल्टर के साथ जो हम मॉडिफाई यूज करते हैं उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया नॉट नल या डिफॉल्ट कांस्टेंट आपको चाहिए, या डेटा बेस या डेटा टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मॉडिफाई यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा नॉट नल के लिए।
कि अगर हम अल्टर के थ्रू नॉट नल किसी टेबल में किसी कॉलम के साथ ऐड करना चाहते हैं, सो इसका एक सिंपल तरीका होता है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल, देन द नेम ऑफ माई टेबल, एंड देन आफ्टर व्हाट वी डू एक्चुअली, हम यहाँ पे लेते हैं मॉडिफाई। नाउ अगर कोई एग्जिस्टिंग से आपके पास कॉलम है किसी टेबल में, लाइक आइटम टेबल में आइटम नेम, हम उस कॉलम को फिर से रीडिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉलम नेम लेते हैं, देन उसका डेटा टाइप लेंगे जो कि ऑलरेडी है, लेकिन हमें उसे फिर से पूरा लिखना होता है। तो कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन उसके बाद में हमें लिखना होता है नॉट नल। तो होगा क्या कि ये नॉट नल कांस्टेंट इसके साथ में इस कॉलम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया अल्टर टेबल, टेबल का नाम मैंने दिया आइटम। अब इस आइटम टेबल में ऑलरेडी एक मेरे पास फील्ड है आइटम नेम के नाम से, और इसका डेटा टाइप में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है varchar। अब इस varchar का साइज भी ऑलरेडी 20 है, तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया नॉट नल को। इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग कॉलम नॉट नल के साथ जुड़ के मॉडिफाई हो गया। तो इस तरह से हम नॉट नल यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपको डिफॉल्ट कांस्टेंट यूज करना है मॉडिफाई में, तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। सो डिफॉल्ट के लिए भी हम सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। मैं आपको सीधे लिख के बता देता हूं, ऑल्टर टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल, ऑब्वियसली वी टेक दिस मॉडिफाई एंड देन कॉलम नेम, इट्स डेटा टाइप, एंड देन डिफॉल्ट, बट एंड डिफॉल्ट के साथ में उसकी जो भी वैल्यू हमें देनी है वो हम यहाँ पे देते हैं, देन दिस सेमीकोलन। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया अल्टर टेबल, नेम ऑफ टेबल इज माई आइटम, एंड मैंने यहाँ पे लिखा मॉडिफाई। मैंने बोला जो मेरा रेट है जिसका डेटा टाइप ऑलरेडी इंट है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आप कर दो 20, मतलब अगर आप रेट कुछ भी नहीं डालते हो तो 20 अपने आप आ जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट वाज कि यदि आप किसी डेटा टाइप को मॉडिफाई करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इंट डाला हुआ है, मुझे इसको फ्लोट करना है, तो इसके लिए जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट, अल्टर देन टेबल। रिमेंबर ऑलवेज कि जब आप किसी भी कमांड के बारे में बात करते हैं, पहले आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए और सिंटैक्स के बाद उसका एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनी कमांड और बेस्ट वे टू राइट एनी कमांड, अगर आप किसी को चाहे समझाएं या खुद के लिए समझें। सो अल्टर टेबल एंड देन आफ्टर ऑब्वियसली द नेम ऑफ टेबल, एंड देन वी टेक अगेन मॉडिफाई एंड द कॉलम नेम एंड न्यू डेटा टाइप। जो भी आप देना चाहते हैं वो डायरेक्ट आप दे सकते हैं। न्यू डेटा टाइप का मतलब ये सिंपली डेटा टाइप है जिसको आप न्यू भी कर सकते हैं, या बेहतर ये होगा कि मैं इसे बोलूं अपडेटेड डेटा टाइप, बिकॉज अगर varchar का साइज आपको बढ़ाना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। देन दिस सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल के लिए लिखा, अब ये जो रेट है मैंने इसे इंट की जगह ले लिया फ्लोट। सो नाउ यू कैन सी सेम यही कॉलम है, सेम यही एग्जाम्पल है, बट दिस टाइम मैंने इसको इंट की जगह फ्लोट ले लिया। नाउ ये तो बात हुई कि कैसे मैंने कांस्टेंट ऐड किए मॉडिफाई को यूज करके, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे डेटा टाइप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि यदि डिफॉल्ट ऐड करना है तो ये तरीका है। अब अगर किसी हमारे टेबल में किसी कॉलम से मुझे डिफॉल्ट हटाना है, जैसे ऑलरेडी मैंने रेट में यहाँ पे डिफॉल्ट डाल दिया 20, बाद में मुझे लगा कि नहीं मुझे ये डिफॉल्ट कांस्टेंट इसमें चाहिए ही नहीं, तो अब आप क्या करते हो, दोबारा जब रीडिफाइन करोगे ना तो उस डिफॉल्ट को यहां से हटा दो। तो अगर नेक्स्ट टाइम मैं फिर से लिखूं मॉडिफाई रेट फ्लोट और बिना डिफॉल्ट के इसे सेमीकोलन लगा के एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो ये डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे इस फील्ड से डिलीट हो जाएगा। और सेम यही चीज हमने जहां पर नॉट नल कांस्टेंट को डाला था varchar के साथ आइटम नेम में, यदि मैं दोबारा इसे लिखूं, सेम यही सिंटैक्स लिखूं, अल्टर टेबल आइटम मॉडिफाई आई नेम varchar 20 और नॉट नल को हटा दूं, तो मेरा ये नॉट नल कांस्टेंट डिलीट हो जाएगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नॉट नल डिफॉल्ट इन दोनों के लिए, या सेम मॉडिफाई के थ्रू आप उसको लिखो तो ऐड हो जाएगा, दोबारा लिखो और विदाउट उस कांस्टेंट को डिफाइन किए तो वो डिलीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड फाइनली
वी कैन ऑल्सो यूज दिस ड्रॉप विद दिस अल्टर, जिसकी हेल्प से हम किसी कॉलम को या किसी कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट को, प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह को डिलीट कर सकते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंपली होता है अल्टर टेबल, देन ऑब्वियसली टेबल नेम, देन से ड्रॉप। अगर प्राइमरी की है तो आप प्राइमरी की पूरा लिखते हैं, अगर फॉरेन की है तो फॉरेन की लिखते हैं, और या फिर अगर आपको कोई कॉलम है तो उस कॉलम नेम को भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये बेसिक सिंटेक्स होता है हमारे अल्टर टेबल में ड्रॉप करने का। से फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा अल्टर टेबल, द नेम ऑफ टेबल इज माय आइटम, एंड इफ आई राइट लाइक ड्रॉप देन द प्राइमरी की, सो ऑटोमेटिकली ये जिस भी फील्ड में प्राइमरी की हमने लगाया होगा इस आइटम टेबल में, वो अपने आप वहां से हट जाएगा। So this is how we can understand alter command. And finally, one more command we can use with as a DDL command, especially, that is known as what your truncate. The purpose of this truncate is to delete all records from a given table. Now truncate को अगर use करने की जहां तक बात है तो you should always write truncate, then the name of table, that is simply you can say table name, and that's it, right? So this is how we can use truncate and all these DDL commands. तो ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया विथ एग्जांपल एंड सिंटेक्स। अब चलता हूं मैं सीधे MySQL सर्वर में, जहां पर एक एक करके ये सारी चीजें मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो नाउ यू कैन सी वी आर इन MySQL। चलिए सबसे पहले मैं अब क्रिएट की बारे में बात करता हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डेटाबेस रेडी करता हूं। इसके लिए मैं ले लेता हूं क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम दे देता हूं एग्जाम्पल, देन सेमीकोलन। सो नाउ यू कैन सी मेरा डेटाबेस रेडी हो चुका है यूजिंग दिस क्रिएट डेटाबेस। इसके बाद चूंकि मुझे टेबल या उससे रिलेटेड अदर ऑपरेशंस करने हैं, इसके लिए मुझे पहले इस डेटाबेस के अंदर जाना होगा। सो दैट व्हाट आई डू हियर, यूज डेटाबेस, यूज एग्जाम्पल आई शुड राइट। सो मैंने यहाँ पे यूज एग्जाम्पल कर लिया। नाउ यू कैन से वी आर इनसाइड द एग्जाम्पल डेटाबेस। नाउ सबसे पहले मैंने बात की थी क्रिएट की। सो अब मैं यहाँ पे एक रेडी करता हूँ टेबल, जिसका मैं नाम देता हूँ आइटम। इस आइटम के अंदर में ऑब्वियसली फील्ड नेम, देन इट्स डेटा टाइप से इंट, देन आइटम नेम आई एम टेकिंग, जिसका मैं साइज देता हूँ varchar, और इसका मैंने डेटा टाइप varchar है, और इसका साइज जो है दैट इज योर 20, एंड देन जस्ट क्लोज दिस ब्रैकेट सेमीकोलन। नाउ यू सी माय टेबल इज ऑल्सो रेडी। इसमें मैंने कोई कांस्टेंट नहीं डाला है क्योंकि हम अल्टर कमांड के थ्रू वो सारी चीजें करेंगे। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कमांड विच इज कॉल्ड एज डिस्क्राइब। अगर मैं डिस्क्राइब टेबल करूं, सो यू कैन सी, एक्चुअली गलत इसलिए होगा कि मुझे डिस्क्राइब के साथ यहाँ पे लेना होगा टेबल नेम, दैट इज माई आइटम। नाउ यू कैन सी इट इज डिस्क्राइबिंग दैट कि ये फील्ड है, ये डेटा टाइप्स हैं, ये नल है, की है, डिफॉल्ट है, भी कुछ भी हमने नहीं डाला हुआ। Describe is a command which is not the part of MySQL command. Remember always, it is actually the command of this server. SQL का पार्ट नहीं होता है describe। तो आप किसी भी क्लासिफिकेशन लाइक DDL, DML में describe फंक्शन को, कमांड को नहीं पाएंगे, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स। अब मैंने ये टेबल रेडी किया है, मैं एक टेबल और रेडी कर लेता हूं ऑर्डर के नाम से, जहां पर मैं ले लेता हूं ऑर्डर नंबर, देन ऑर्डर डेट एंड माई सिंपली आइटम नंबर, जिसे मैं फॉरेन की बनाऊंगा इसलिए मैंने इसे लिया यहाँ पे, और इनका मैं डेटा टाइप इनके साथ इन्वॉल्व कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट, और इसके साथ में मैं ले लेता हूँ ऑर्डर डेट के साथ डेट, और आइटम नंबर ऑब्वियसली मैं ले लेता हूँ इंट। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन दिस सेमी कॉलन। नाउ प्रेस एंटर। देयर इज सम मिस्टेक, लेट मी चेक इट। इट शुड बी क्रिएट टेबल actually, so I am taking this to create table, then I think it will run properly. Again there is a mistake. What is the mistake? Let me check again. So I have removed all the given blank spaces. Let's try to run this again. So you have any error in check the manual. So what I do here, मैं इसका नाम चेंज करके देखता हूँ, create table orders, then ORNO, then integer, that is okay. Order date is actually date, then item number int, then semicolon, then run it. So now you can see it is running because ONO को ये wrong consider कर रहा था. So I hope कि आपको ये अभी समझ में आ रहा होगा. Now my both tables are ready. अब मैं बात करता हूँ create के बाद में drop की. drop हम सबसे लास्ट में करेंगे. उसके पहले मैं बात करता हूँ अल्टर कमांड की. जैसे मैंने बोला, अल्टर की हेल्प से हम ऐड अगर यूज करना चाहें तो चार चीजें कर सकते हैं: प्राइमरी, फॉरेन, यूनिक एंड
चेक कांस्टेंट। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अल्टर, देन माय टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल इज आइटम। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ प्राइमरी की, सो आई एम राइटिंग दिस ऐड प्राइमरी की। द नेम ऑफ फील्ड इज माय आइटम नंबर, then bracket close, then semicolon. Now run it. So now you can see it is added. You can check it by using this describe. So I am taking this to item. So now you can see here it is saying that key is my primary key. So this is how we can add it. Now the same primary key, which is basically in item number, I will take it as a foreign key in my order table. So what can I write then is my alter table. The name of my table is order, and then obviously add, and then foreign key, and here I am saying that my item number should be foreign key, and references will come from obviously my item table, and the field is my item number, then semicolon, then press enter. I think there is some problem. Let me check again. So alter table, then the name of table is my order, and then foreign key is right, then references is also correct, the name of table is also okay, item number is also right. I think I have written the correct syntax. So what I do, let me run it again. So again it is showing us the error. So what I do, I just try to check the order tables details. So it is actually DESC orders is there, or yes, it is orders actually. So that was the mistake actually. So it should be orders actually. So what I do here, I am taking it to orders. Now if I run it, so now you can see my foreign key is also added. Now the next thing is that I want to add unique key in my item table. So name should also be unique. So what I do, I can simply type alter table, then the field name is obviously table name is my item, then I am going to add this unique, and the field name is my item name, bracket close, semicolon. So now you can see it is also added. Again describe the table, that is my item. So now you can see here it is saying that unique key is added. So this is how we can understand these all constant. Similarly, I want to add a new column now in my item table. So again I can take the help of this item table, then the name of table is my item. I want to add a new column, so I'll explain that column with full details. Say the rate should be there and data type is int, and that's it. Then semicolon, press enter. So now this is also added. Again describe it. So I am taking it describe item. So now you can see the rate is also added now. And then the next thing I am going to tell is check constant. How can I add check constant in this rate column? Suppose I want that rate should always be greater than 20 rupees. For that I can write alter table, then the name of table is obviously my item, then I am going to add my check constant, and the field name is obviously my rate, and it should always be greater than equal to. So I can simply write this validation. See, check constant is always used for validating data. That's why I am taking this rate is greater than equal to 20, then just semicolon, press enter. So now you see my check constant is also added. So all these things are basically the adding the things using what alter command. And similarly, if you want to modify your structure of table using alter command, so I told this, like we can add null, default, etc., or we can change the data type as well. So what can I do here? I am going to start with this alter table. The name of my table is item, and I want to add this not null in item name field. So I can simply write modify, and the name of my column is item name, data type is my varchar, and the size is what, my 20. Then I am taking this not null here, then semicolon. So now you see it is added. Check it again by using this describe. So I take this describe item. So now you can see here it is saying that no is here. So it means that it is added, not null is added. Similarly, if I want to delete this not null from item name, आप add भी कर सकते हो और delete भी कर सकते हो. So same way you can do that. ये मैंने alter table लिया था, यहाँ पे ये not null हटा दो. अच्छा, अगर मुझे डेटा टाइप 20 से बढ़ा के 40 करना है, मीन्स varchar का साइज 40 करना है, तो मैंने not null भी हटा दिया, साइज भी इंक्रीज कर दिया डेटा टाइप का. देन यू प्रेस एंटर. सो नाउ
अगर आप डिस्क्राइब करोगे इस टेबल को, देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी हियर साइज भी चेंज हो गया, नॉट नल हट गया, मतलब नल इज एक्सेप्टेबल नाउ। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज मॉडिफाई। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू, लाइक डिफॉल्ट आप ऐड कर सकते हो, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आई टेक लाइक अल्टर एंड से फॉर एग्जाम्पल मैं रेट जो है 40 रखना चाहता हूं बाय डिफॉल्ट। सो आई एम टेकिंग दिस अल्टर टेबल, द नेम ऑफ माई टेबल इज आइटम, एंड हियर आई एम टेकिंग दिस मॉडिफाई and the name of my column is rate. Data type I have to write this in, and then default. So default लेने के बाद में मैंने by default 40 डाल दिया, semicolon, press enter, so it is added. Describe it. Now you see here default is 40. And same way अगर आपको नहीं चाहिए, same वही पैटर्न पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको यहां से हटा दो एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, एंड देन अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो आप देखो मेरा डिफॉल्ट यहां से हट गया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस ऑल्टर। एंड सिमिलरली अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है या प्राइमरी की ड्रॉप करना है, से फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑर्डर टेबल है, मुझे वहां से फॉरेन की हटाना है। सो ऑर्डर टेबल, सॉरी अल्टर टेबल, देन द नेम ऑफ माई टेबल इज ऑर्डर्स, एंड मैं यहां से ड्रॉप करना चाहता हूं फॉरेन की को, सो आई कैन सिंपली राइट फॉरेन की, इसके बाद आप सेमीकोलन डाल के, एक्चुअली इट शुड बी ड्रॉप, सो आई शुड टेक इट टू ड्रॉप, नाउ प्रेस एंटर, सो इट इज सेइंग दैट इनकरेक्ट सिंटेक्स। सो हियर व्हाट आई डू, आई जस्ट चेक द डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्डर टेबल्स in terms of its design. So here it is saying that item number is MUL. So what should I do? I just try to write this drop foreign key MUL, then if I run it, can't drop MUL, check the column key existing. Alright, the problem is what basically क्या होता है कि जब भी हम कोई कांस्टेंट को अपने टेबल में ऐड करते हैं किसी कॉलम के साथ में, तो सिस्टम या MySQL ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको एक नेम असाइन करता है। ये जो नेम होता है वो बेसिकली एक कांस्टेंट नेम होता है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस फॉरेन की का क्या कांस्टेंट नेम दिया गया है ये चेक करना होगा। तो इसके लिए मैं डिस्क्राइब फंक्शन अगर यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर इस टेबल के कांस्टेंट की, आई मीन फॉरेन की डिटेल नहीं मिल रही, मतलब उसका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका मेरे पास होता है वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूं शो, देन माई क्रिएट टेबल एंड द नेम ऑफ माई टेबल दैट इज ऑर्डर्स। अब अगर मैं इसे लिखूंगा तो नाउ यू सी हियर, आई थिंक ये थोड़ा आपके लिए न्यू हो सकता है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। तो अगर किसी भी डिटेल चाहिए अपने टेबल में, सारे कांस्टेंट का नाम है या क्या है, तो डिस्क्राइब के साथ इसे और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए इसका नाम दिया हुआ है ऑर्डर्स अंडरस्कोर IBFK1। सो नाउ व्हाट आई डू, मैं अगर यहाँ पे अल्टर टेबल फॉरेन की और यहाँ पे अब लिखता हूं ऑर्डर्स अंडरस्कोर IBFK_1, एंड देन अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूं, सो नाउ इट इज डिलीटेड, राइट। तो प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपको इसकी जरूरत पड़े या प्लीज इसे ध्यान में रखेंगे। एंड नाउ अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा, देन यू सी व्हाट हैपेंस, सॉरी डिस्क्राइब द नेम ऑफ माई टेबल, सो इट इज ऑब्वियसली माई ऑर्डर्स। नाउ रन इट, सो नाउ यू सी यहां पर फिलहाल फॉरेन की कोई डिटेल नहीं आ रही है, बट अब अगर मैं फिर से शो टेबल वाला कोड एग्जीक्यूट करूं यहां पर, तब आप देखेंगे यहां पे कोई भी फॉरेन की मेरे पास नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे अपने आइटम टेबल से प्राइमरी की रिमूव करनी है, तो आई कैन सिंपली राइट अल्टर टेबल, द नेम ऑफ माई टेबल इज आइटम, देन आई कैन सिंपली राइट ड्रॉप and primary key. So then put this semicolon and run it. So now you see primary key is also deleted. So if you write describe item now, so now you see how primary key is deleted. अब यहाँ पर कोई भी primary key नहीं है। Similarly आप unique key को भी यहाँ से drop कर सकते हैं, right? So this is how we can use all these DDL commands in MySQL. I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फाइनली जो ट्रंकेट है, चूंकि हमारे पास इसमें कोई भी डेटा नहीं है, देन अगेन अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिखते हैं ट्रंकेट द नेम ऑफ माई टेबल इज आइटम। सो यू सी कि यहाँ पे 0 रो अफेक्टेड क्योंकि भी है नहीं। अगर रिकॉर्ड्स होते तो उस टेबल मींस आइटम टेबल के सारे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाते हैं।
So overall, this is how we can understand create, drop, alter and truncate command as a DDL in MySQL. So now I hope you will be able to understand all these commands in a quick and easy manner. So I think I should stop my video now. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन, नए चैप्टर के साथ में. Till then, bye bye, take care, keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.